Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, SSC CGL exams are going on, and today I was reading one comment. The person has mentioned, sir, the exam is very easy. Everybody should appear in the examination. This is very good comment. But whether everybody will get the job, answer is no. Look at the competition. The competition is there are 17,727 vacancies and 36.73 lakhs candidate. So out of this 36.73 lakh candidate, around 17,727 people will get the job. If vacancies are increased or decreased, that number will come in the future. But everybody will not get the job. So whether exam is easy or tough, it is not going to uh, be very material for you. Important thing is, are you getting the job or you are not getting the job? And that's why over relying on one job is very dangerous these days. Some people, due to overhype of certain sector, they give full focus only on one sector and ultimately they lose the job in other sectors. Say if you are preparing for SSC, it is good. But if you keep your plan B also ready, where chances of your selection is also there, like banking exams or other sector exams where vacancies are reasonably well and number of candidates are comparatively less, that will help you. So if you have done with the SSC examination and you have applied for the banking examination also, so it is high time you should focus on preparation of those exams also. Don't remain overconfident on any one exam or any one selection. These days, results are unpredictable. Keep many options open for yourself. That will help you. So my advice is, it is good you have appeared for SSC. It will also be good if you focus on other sector exams side by side, because if we see the number of candidates and if we see the number of vacancies, there is a tough competition for these type of examination, because more and more people are now appearing for such exams. So this is my word of caution, because every year after the result, many people call me and say, sir, we ignored the banking exam, now we have not cleared the SSC, we are nowhere. So that's why I say keep a balance and look for the opportunities where exam and the chances of selection is reasonably good. Keep those exams also in your focus. You should primarily focus for some sector that is fair. If somebody is after SSC, it is fair. But SSC should not be the only factor for you, because the limitation of number of vacancies there. You may be good, you may qualify, but equally chances you may not qualify. And then if you don't qualify and you have not made any plan B, then entire year is lost. You have to wait for one more year. And again, there is no certainty that what will be the number of vacancies, how many candidates will be there. So every year, whatever competition comes where number of vacancies are large, and if you have applied, try to distribute your time for that also. This is my advice. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SSC CGL के एग्ज़ाम चल रहे हैं. आप में से काफ़ी लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं. आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा, सर एग्ज़ाम बहुत आसान था और ऐसा एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए. ये बहुत अच्छी बात है. आपको एग्ज़ाम अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है. क्या एग्ज़ाम आसान होने से हमें नौकरी मिल जाएगी? ये मूल प्रश्न है. इसको जरूर हमें विचार करना चाहिए. कई बार हम मोमेंट्री खुशी लेके बहुत खुश हो जाते हैं और वास्तविकता से दूर रहते हैं. वास्तविकता क्या है? वैकेंसी हैं 17,727, कैंडिडेट है 36 लाख और 73,000. मीन्स इन कैंडिडेट में से 17,700 प्लस कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी और बाकियों को नहीं मिलेगी. वैकेंसी अगर बढ़ गई तो कुछ और लोगों को मिल जाएगी, पर वास्तविकता ये है कि अधिकांश लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी.
ये भी एक सच्चाई है। तो यदि मैं एक ही एग्ज़ाम के ऊपर निर्भर हूँ तो हो सकता है कि साल के अंत में मेरे को आशा भी हासिल लग सकती है, निराशा भी हासिल लग सकती है। तो इसलिए हमेशा आप अपना बी प्लान जरूर बना के चलें। उन एग्ज़ाम्स को भी साथ में फोकस में लेके चलें जहाँ रीजनेबली गुड वैकेंसीज हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर हाई तो नहीं है वैकेंसीज, मगर फिर भी हज़ारों में है और कैंडिडेट कंपैरेटिवली कम है एसएससी के मुकाबले। तो यदि आप अपने बी प्लान के अंदर अगर आपको लगता है कि भाई आपका जो डार्लिंग है वो एसएससी है, तो आप अपने बी प्लान में इसको रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कई लोगों का प्लान ए बैंकिंग होगा, प्लान बी एसएससी होगा, ये अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। पर काफ़ी लोगों का ऐसा भी होगा कि उनका जो डार्लिंग है वो एसएससी है, मगर फिर भी ज़रूरी नहीं कि जो आप चाह रहे हो वही मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में अभी इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है कि हम हर दूसरी चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं और वो भी घातक सिद्ध होता है। आप उसके लिए एफिनिटी रखिए, मगर प्रैक्टिकल भी रहिए कि अगर मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मेरे पास कोई और नौकरी है सस्टेन करने के लिए, क्या मैं दूसरे सेक्टर को टोटली इग्नोर तो नहीं कर रहा। तो ऐसे के अंदर अगर आपने ऑलरेडी, क्योंकि इस साल के एप्लीकेशंस तो भरे जा चुके हैं, तो जो अब एसबीआई की आएंगी उसमें आप अप्लाई करेंगे वो अलग बात है। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको मैं सलाह दूंगा जैसे जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होता जाए तो अपना फोकस आप बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम्स पे भी लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा ज़रूर दिख रही हैं पर वो इतनी अधिक नहीं है कि सबको नौकरी मिलेगी। लाखों की तादाद में कैंडिडेट हर साल की तरह इस साल भी निराश होंगे, वो होते ही हैं, क्योंकि अधिकांश लोग आशावान होते हैं मगर जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो निराशा भी आती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए यदि मैंने प्लान बी बनाया हुआ है तो मान लो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन थी वो नहीं मिली मुझे एसएससी, तो कुछ और मिल जाए ताकि मैं सस्टेन तो कर सकूं जीवन के अंदर, और हो सकता है वो भी अच्छा निकल जाए सेक्टर और वहाँ मेरी ज़िंदगी बन जाए। तो मेरा सलाह ये है कि जो लोग भी अभी एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो अपने एनालिसिस करके, कईयों को लगता है कि नहीं मुझे अगले फेज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए, वो आपकी अपनी असेसमेंट है, मगर जो एग्ज़ाम अभी पाइपलाइन में हैं उन पर भी फोकस ज़रूर बनाए रखें ताकि आपके पास एक से अधिक ऑप्शन ओपन रहे, ऐसी मेरी सलाह है। क्योंकि हर साल रिज़ल्ट के बाद काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि सर हमने टोटली निगलेक्ट कर दी थी बैंकिंग की तैयारी, अब हम पछता रहे हैं, अब क्या हो सकता है, अगले साल हम क्या करें, क्या दोनों एग्ज़ाम को फोकस में लेके चलें। तो इसीलिए ये वीडियो मैं इन बिटवीन डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, काफ़ी लोग एग्ज़ाम में फोकस थे, तो मैंने सोचा कि ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम भी मैं आपको साथ साथ कोर्स करेक्टर सजेस्ट करता रहूँ ताकि आप जो बाद में प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आपको पहले से मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।